Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is root locus part 3. In earlier two parts, in the part 1, we have solved the numericals where we considered there are no zeros and real poles were existing. In part 2, we considered complex poles. Now third type of variation is there can be some zeros along with the poles. One more variation can be there, like zeros are there and some complex poles are there. We have already studied, I have already covered the method which is required for complex poles in part 2. So before watching this, please do watch the earlier parts, that is part 1 and part 2. So without wasting the time, let us start solving the numerical. The present numerical is sketch the root locus and comment on the stability. This is the given numerical. अब पहले before starting हमें जीरोस लिख के रखना है. जीरोस मतलब रूट्स ऑफ न्यूमरेटर टर्म. देखो न्यूमरेटर में के है वो कांस्टेंट है एंड वन मोर ब्रैकेट टर्म इज देयर दैट इज s प्लस 2. डोंट मेक मिस्टेक, हमेशा ऐसे याद रखना है. ये इसके रूट्स लिखते वक्त इसका साइन चेंज करके लिखना है. मतलब ये टर्म है न्यूमरेटर में s प्लस 2. न्यूमरेटर के जो रूट्स है उसको जीरोस बोलते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज करना है. सो देयर इज 1 0 व्हिच इज एट -2. देन पोल्स. अब देखो पहला टर्म है s, मतलब इट कैन बी रिटन एज s माइनस 0. तो पहला पोल है 0 पे, दूसरा पोल है इसका साइन चेंज करना है s प्लस 1. तो साइन चेंज करेंगे तो -1 आएगा. ये है s प्लस 3, इसका साइन चेंज करेंगे तो -3 आ जाएगा. सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, नंबर ऑफ पोल्स p इज इक्वल्स टू 3. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल एज यूजुअल. मतलब पहला स्टेप we have to find out how many number of branches or number of loci are there in this root locus. So number of branches is given by maximum value of p comma z, which is same as maximum of p मतलब number of poles 3 comma 1. So that is equals to 3. Maximum out of this 3 comma 1, इसका आंसर आएगा 3. Then number of branches tending towards infinity, I will write it like this, tending towards infinity is given by p minus z. इस केस में आएगा 3 minus 1. p मतलब number of poles, z means number of zeros. So 2 branches will tend towards infinity. This is the first step. In step 2 we have to plot the pole zero diagram. अब like all the previous cases, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे लिखेंगे सिग्मा. इट रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट. ये इमेजिनरी एक्सिस है, इट इज मार्क्ड एज जे ओमेगा. अब देखो जीरो कहां पे, जीरो इज एट -2. नंबर ऑफ जीरोस आर 1 बट वैल्यू ऑफ जीरो इज एट -2. पहले स्केल मार्क करके रखते हैं. सो let us say this is 0, this is -1, this is -2, this is -3. जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों के ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो 0 is at -2. 0 is denoted by small circle. ये 0 है, it is at -2. poles are at 0, -1 and -3. poles are denoted by cross. तो एक पोल यहाँ पे 0, दूसरा पोल है -1 पे, तीसरा पोल है -3 पे. We know that ये जो लाइन है this is still -infinity. ओके, अब like the previous sums हमें ये चेक करना है कि कौन सा पार्ट, which part of real axis is lying in the root locus and which part is not lying in the root locus. सिंपल ट्रिक्स याद रखना है. जैसे ये पहला पोल 0 पे, ये देख लो -1 का जो पोल है, यहाँ पे अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन कंसिडर करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में, -1 के राइट हैंड साइड में एक ही पोल है. 1 पोल इज देयर. नंबर 1 इज ऑड नंबर. सो दिस पार्ट दैट इज फ्रॉम -1 to 0 इज अ पार्ट ऑफ रियल लोकस, इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. ये बोल्ड करके लिखना है. फिर ऐसा सोच लो -2 ये 0 पे, इसके राइट हैंड साइड में 2 पोल्स है. नंबर 2 poles are there. Number 2 is even number, so this will not be part of root locus. Then consider pole at -3. -3 पे एक vertical line consider करेंगे. इसके right hand side में there are 3 numbers, 1 0 and 2 poles. Poles and zeros won't make any difference. दोनों मिलके कितना है, number 3 is there, that means 1 0 and 2 poles. So three things are there.
नंबर 3 इज ऑड नंबर, तो -3 से -2 तक दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. So I have marked the portion on real axis which is part of root locus. Next step, we have to calculate angle of asymptotes. This is the formula to calculate angle of asymptotes. It is 2n plus 1 into 180 degree upon p minus z, and range of n is p minus z minus 1. मतलब इस केस में n का रेंज होगा, p मतलब नंबर ऑफ पोल्स दैट इज 3, z मतलब नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 1, 3 minus 1 minus 1. तो n का रेंज ये ऐसा होता है, n का रेंज इज 0, 1 अप टू p माइनस z माइनस 1. तो n का रेंज मैं ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, देखो p माइनस z माइनस 1 मतलब ये आएगा 3 माइनस नंबर ऑफ जीरोज इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1. मतलब n का वैल्यू आएगा 0 और 1. बहुत सिंपल है, p माइनस z माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 माइनस 1. इसका आंसर आ रहा है 1 और 0 1 2 3 ऐसे एक्सटेंड करना है हमें, मतलब 0 to 1. सो n इज इक्वल्स टू 0 to 1. सो फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर n इज इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन में, थीटा की इक्वेशन में जहां जहां n है वहां 0 पुट करना है. सो लेट अस से आई विल डिनोट इट बाय थीटा 0. इट इज n के बदले में 0 पुट कर रहे हैं, सो 2 into 0 0 plus 1 upon p means number of poles that is 3, z means number of zeros that is 1 into 180 degree. So this gives me 1 upon 2 into 180 degree that is 90 degree. तो पहला एसिम्पटोट्स का एंगल आ गया 90 डिग्री. आई विल राइट दिस एंगल्स ओवर हियर. सो थीटा 0 इज 90 डिग्री. दूसरा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए लेट अस से आई विल यूज नोटेशन थीटा 1. जहां पे n है वहां 1 पुट करना है, सो 2 into 1 2 plus 1 ऐसे लिखता हूं. 2 plus 1 is 3 into 180 डिग्री. देखो 2 into 1 2 plus 1 3 into 180 डिग्री अपॉन p माइनस z, p is 3 minus 1. ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया 270 डिग्री. सो थीटा 1 is 270 डिग्री. That means we have to draw two asymptotes making an angle 90 degree and 270 degree respectively. अब नेक्स्ट स्टेप, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है. मैंने फॉर्मूला लिखा है सेंट्रॉइड का. सेंट्रॉइड इज समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस z. देखो इसमें पोल्स ऑलरेडी दिए हैं तो, और ये रियल पोल्स है. सो रियल पार्ट ऑफ पोल्स मतलब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें. रियल पार्ट ऑफ पोल्स आर, पहला तो पोल 0 पे है तो वो स्किप करेंगे. उसका दूसरे पोल का रियल पार्ट मतलब -1, ये ऑलरेडी रियल पार्ट है. जे टर्म नहीं होना चाहिए, जे टर्म इंडिकेट्स इमेजिनरी पार्ट. सो ये रियल पार्ट है. दूसरा पोल इसका एडिशन करना है, मतलब प्लस रियल पार्ट ऑफ पोल्स, दूसरे पोल का रियल पार्ट -3 है, सो -3 ऐसे लिखता हूं मैं. ये हो गया समेशन ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस. 0 है -2 पे, वो भी रियल ही है, सो आई विल राइट -2 डिवाइडेड बाय p माइनस z मतलब 3 minus 1. तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -4, माइनस ऑफ माइनस बिकम 2 upon 2. सो इट इज -2 upon 2 दैट इज इक्वल्स टू -1. इसका मतलब है सेंट्रॉइड -1 पे आ रहा है. सो सेंट्रॉइड इज एट दिस पोजीशन, ये -1 पे. अब देखो रूल क्या है, जहां पे सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है जहां पे पोल है ऑलरेडी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा. अब जहां पे ये सेंट्रॉइड आ रहा है -1 पे, वहां पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने हैं. एक एंगल है एसिम्पटोट का 90 डिग्री, दूसरा है 270 डिग्री. वी नो द रूल, हमेशा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइक दिस. इससे रिलेटेड मेजर करना है, तो ये सेंट्रॉइड, ये सेंटर लेके मेजर करना है. सो फर्स्ट एसिम्पटोट, हमेशा एसिम्पटोट्स आर ड्रॉन विद द डॉटेड लाइन. पहला एसिम्पटोट ये ऐसा आएगा जिसका एंगल होगा 90 डिग्री. ये थीटा 0 हो गया. आई एम मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस एंड इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट वेयर सेंट्रॉइड लाइज. सेंट्रॉइड का वैल्यू है -1. दूसरा एसिम्पटोट है 270 डिग्री. देखो इस एक्सिस से रिलेटेड हमें मेजर करना है. यहां तक आओगे तो 180 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से आओगे तो ये 270 डिग्री होता है. सो सेकंड एसिम्पटोट इज लाइक दिस, whose value is 270 degree. You can well consider it as -90 degree. Anyways, so I have drawn
two asymptotes, one at 90 degree and another at 270. Next step, breakaway point. We have to calculate the breakaway point. अब देखो breakaway point calculate करने के लिए we need to solve this equation 1 plus g of s into h of s is equals to 0. ये solve करके ये जो equation आएगा इसके roots calculate करने हैं. So let us put the values. It is 1 plus k into s plus 2 upon s into s plus 1 s plus 3 is equals to 0. Take the LCM, मतलब 1 into this term, so it is s into s plus 1 s plus 3 plus k s plus 2 upon ये term आएगा, but we have 0 at the right hand side as usual, मतलब ये 1 into this term upon ये term पूरा आएगा, लेकिन ये RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा. So I am not writing this term over here. So expand this term, तो ये आएगा, हमें k का वैल्यू ऑब्टेन करना है. So let us rearrange the terms. I will write it here itself. k into s plus 2 is equals to minus s into s plus 1 s plus 3. तो k का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं इससे. बिफोर दैट वी नीड टू ट्रांसफर दिस s प्लस 2 टर्म एट द RHS, मतलब ये मैं यहां से रिमूव करता हूं और यहां लिखता हूं. इट इज s प्लस 2. दिस इज इक्वेशन ऑफ k. लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो k का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस साइन एज इट इज रखता हूं मैं, s एज इट इज, टेक मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स, सो इट बिकम्स s स्क्वायर, s इंटू एस एस स्क्वायर प्लस ये 3s आएगा और ये 1s, मतलब प्लस 4s प्लस 3 अपॉन s प्लस 2. आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज माइनस एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर माइनस 3s अपॉन s प्लस 2. ये k का इक्वेशन आ गया, माइनस एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर माइनस 3s अपॉन s प्लस 2. अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है. द कंडीशन इज वी हैव टू टेक dk बाय ds, डिफरेंशिएट k विथ रिस्पेक्ट टू ds एंड इक्वेट इट टू 0. अब देखो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मेक यूज ऑफ the u by v rule. For your information, I will write that rule over here. So if it is d by dt of u by v, rule is v मतलब denominator term into derivative of numerator du by dt minus u मतलब numerator term into dv by dt divided by v square. u मतलब numerator term, v मतलब denominator term. ये rule हमें यूज करना है. ओके, तो इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे. v मतलब डिनोमिनेटर टर्म, तो पहले मैं s प्लस 2 लिखता हूं इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म. देखो d बाई डी टी ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म, ये न्यूमरेटर टर्म है, इसका डेरिवेटिव, तो ये माइनस साइन एज इट इज एस क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये आएगा माइनस 3s स्क्वायर, ये माइनस 4s स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 8, देखो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा इंटू s माइनस 3. ये टर्म हो गया. v मतलब डिनोमिनेटर टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म. आई हैव रिटन माइनस u मतलब ये टर्म एज इट इज लिखेंगे माइनस s क्यूब माइनस 4s स्क्वायर माइनस 3s माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म. डिनोमिनेटर में s प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव मतलब 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s इज 1 on 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब ये s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. क्या किया मैंने, सिर्फ डेरिवेटिव लिया. नाउ वी हैव टू इक्वेट इट टू 0, सो नेचुरली s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर RHS में ट्रांसफर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. लेट अस ओपन अप दिस ब्रैकेट्स, मतलब ये s प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट बिकम्स, पहले s से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3s क्यूब माइनस 8s स्क्वायर. देखो s से पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस 8s स्क्वायर फिर माइनस 3s, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6s स्क्वायर माइनस 16s माइनस 6, ये एक टर्म हो गया. फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस s क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4s स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3s इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर टर्म में यहाँ पे ट्रांसफर कर लूंगा तो इक्वेशन 0 आ जाएगा.
ये आगे सिंप्लीफाई करना है, एस क्यूब के क्या क्या टर्म्स है देख लो, ये 3s² एक टर्म है और ये एस क्यूब, 3s³ और एस क्यूब का एक टर्म है, तो ये आ जाएगा -2s³। फिर एस स्क्वायर के टर्म्स क्या क्या है देखो, ये -8s² है, -6 इंटू एस स्क्वायर है और ये 4s² है, सो -14 + 4 -10s² आ जाएगा, फिर ये -10s²। फिर s के टर्म्स क्या क्या है चेक कर लो, s मतलब ये एक टर्म है, -3s, -16s, ये होगा -19s और ये +3s, मतलब ये हो गया -16s। फिर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या टर्म है देखना है, कांस्टेंट एक ही टर्म है, दैट इज -6, सो -6 = 0। अब आवर एम इज टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये सब टर्म्स नेगेटिव है, सो आई विल मेक एवरी टर्म पॉजिटिव एज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो इक्वेशन आ जाएगा 2s³ + 16s² + 16s + 6 = 0. This equation I have got by performing dk by ds, मतलब differentiating k with respect to s and equating the result to 0. अब कैलकुलेटर पे इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं, इसके रूट्स आएंगे s = -0.534, फिर दूसरा इसको मैं s1 बोलता हूँ, दूसरा रूट s2 = -2.232 + j.792 और एक रूट आएगा दैट इज -2.232 - j.792। याद रखना ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, इसलिए कैलसी पे करना है, तो ये 3 वैल्यूज आ गए। अब देखो जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं हमें ये चेक करना है, आउट ऑफ दिस वैल्यूज विच वैल्यू इज लाइंग ऑन द रूट लोकस। जो रूट लोकस का पार्ट है ये पहले से हमने बोल्ड करके रखा है, मतलब लाइक दिस आई हैव यूज्ड ब्लू कलर फॉर दिस। अब देखो -0.534 ये वैल्यू चेक कर लो, इट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। जैसे मैंने बताया, मैंने ब्लू इंक से जो बनाया दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, दिस वैल्यू आई विल denote it by, I will write its value as -0.534। ये एक पॉइंट आएगा। बाकी देखो ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स टर्म अगर आपको प्लॉट करना है तो ये क्या -2.23, मतलब यहाँ पे लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा, दूसरा यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। व्हाट इज आवर रूल, जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो रियल, मतलब इज इट पार्ट ऑफ रूट लोकस और नॉट, ये चेक करना है, मतलब रियल एक्सिस पे होना चाहिए। तो दिस टू आर आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, ये रियल टर्म है और वो दैट इज लाइंग ऑन द रूट लोकस, इसलिए दिस इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। सो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट इज -0.534। Next step is intersection with imaginary axis. We have already obtained this equation. ये इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं, we know the procedure, 1 + g of s into h of s = 0। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है पहले वाले स्टेप में। सो दिस इक्वेशन इज s³ + 4s² + 3s + k into s + 2 = 0। सिर्फ हमें ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, s³ + 4s² + 3s plus k into s plus 2k = 0. So it is same as s³ plus 4s² plus s कॉमन लेना है इससे, so s in the bracket 3 plus k plus 2k = 0. Now we know the usual procedure, इससे राउथ एरे तैयार करना है। So राउथ एरे विल बी लाइक दिस, यहाँ पे s³ लिखेंगे, यहाँ पे s², यहाँ पे s⁻1, यहाँ पे s⁻0। तो इसके कोएफिशिएंट्स आएंगे, पहला कोएफिशिएंट है इसका 1, सो इट इज 1, देन 3 plus k, फिर जो कोई कोएफिशिएंट नहीं है वो 0 लिखना है। फिर सेकंड कोएफिशिएंट ये रेगुलर प्रोसीजर प्लस ये 2k आएगा, इसके आगे का 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, दिस इंटू दिस, मतलब 12 plus 4k minus this into this -2k/4। ये कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट दिस इंटू दिस -0 अपॉन दिस करना है, तो इसका आंसर 2k आ जाएगा।
Now we know the usual procedure. पहला वैल्यू ऐसा आएगा 2k ग्रेटर देन 0 स्टेबिलिटी के लिए, therefore k इज ग्रेटर देन 0. ये एक कंडीशन होगा स्टेबिलिटी के लिए. बट वी नीड टू कंसिडर द मार्जिनल वैल्यू ऑफ के. मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए वी नो द रूल, एक रो जीरो का होना चाहिए, ये ऑलरेडी जीरो है तो ये टर्म मुझे जीरो करना है और जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको के मार्जिनल बोलेंगे. सो अब ये टर्म पहले मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ. 12 प्लस 4k माइनस 2k मतलब प्लस 2k और यहाँ पे मैं लिखता हूँ k मार्जिनल बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर मार्जिनल कैलकुलेशंस. अपॉन 4 इक्वल्स टू 0. वी नो द रूल. ये टर्म मुझे जीरो करना है. ये 4k माइनस 2k आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0. 4 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सो इट गिव्स मी 12 प्लस 2k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 2k मार्जिनल इज इक्वल्स टू माइनस 12. देयरफॉर k मार्जिनल इज इक्वल्स टू माइनस 6. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. हमेशा एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, वैल्यू ऑफ के मार्जिनल मस्ट बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है देयर इज नो इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस. ये कंसेप्ट याद रख लो. व्हेनेवर यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू of k marginal, it indicates that there is no intersection with the imaginary axis. तो अब रूट लोकस प्लॉट कैसे करना है? देखो इसमें एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है. देयर इज नो इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस. सिर्फ अपने पास ये पॉइंट आया है, ब्रेक अवे पॉइंट आया है, वो हमने मार्क किया है. ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ के जो रूट्स है दिस विल ट्रेवल टूवर्ड्स ब्रेक अवे पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पे यहाँ तक, और इसके बाद ये स्प्लिट हो जाएंगे. अब देखो these are the asymptotes which I have already drawn. The root locus does not intersect with imaginary axis but it should pass through this point. तो root locus ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब इससे पैरेलल, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग विथ इमेजिनरी एक्सिस, तो इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. एक्चुअली इन्फिनिटी से है, यहाँ पे कर्व आएगा, इट विल टच टू दिस पॉइंट और फिर ये ऐसा नीचे आ जाएगा. इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग सो इट विल रन पैरेलल with the asymptotes passing through this point, that of point minus 0.534 which is a break away point. So this is the root locus for the given diagram. So dear students, that's it for today's session. I have covered major 3 variations in such numericals. I have already told you what could be the another possible variation. Zeros यहाँ पे होगा, यहाँ के पोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें हमें एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली चेंज. सो दैट्स इट